Praise the Lord, everyone. It gives me immense pleasure to welcome you all to Mahanaim TV. Mahanaim TV पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हो. And I would like to read from the Word of God from Jeremiah, chapter 29, verses 11 to 14. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will hear you. You will seek me and find me, when you seek me with all your heart. I will be found by you, declares the Lord, and I will restore your fortunes and gather you from all the nations and all the places where I have driven you, declares the Lord, and I will bring you back to the place from which I sent you into exile. Hallelujah. आप किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, if you are going through uncertain times in your life, trust that the Lord is there with you. वो खुदा आपके साथ हमेशा बना रहेगा और वो ज़रूर आपकी मदद और सहायता करेगा. तो आइए हम उसके पवित्र नाम को ऊंचे पे उठाएं. Let us all raise a hallelujah unto the Lord. And today you will be blessed by the word by my mother, Miss Ekta Lal, and the Lord is going to bless you. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah. Fear you lost your hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Sing a little louder, 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 oh sing a little louder, oh sing a little louder, sing a little louder in the presence of my enemies. Sing a little louder, oh, louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Just sing a little louder.
विरोधियों के बीच में अविश्वास से ज्यादा बढ़कर ये गीत ही मेरा शस्त्र है, स्वर्ग ही मेरे ओर है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का धन्यवाद हो इस अच्छे समय के लिए, इस खूबसूरत मौके के लिए। आने से पहले, शुरुआत से पहले मैं खुदावंद का धन्यवाद कर रही थी, उसकी शुक्रगुजारी कर रही थी दैट यू नो ही हैज़ बीन सो ग्रेशियस टू मी, टू अस, टू माय फैमिली, टू योर फैमिली। खुदावंद के बहुत अच्छे फजल के लिए, उसके बड़े फजल के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उसकी, और मैं जानती हूँ कि आप भी बहुत शुक्रगुजार हैं। एक अच्छा साल हमने बिताया, इस अच्छे साल के लिए, 2020 के लिए। आई एम थैंकफुल to God, you know, for the year 2020, He has been gracious to me, to you, to our families, कि हम सब 2021 में आने पाए हैं। We have been able to come to year 2021 and I'm so thankful to God. खुदावंद का बहुत धन्यवाद करती हूँ। And I am here to come and bless you with a word. आपसे मुलाकात करने आ पाई हूँ, एक बार फिर से खुदावंद के वचन से आपके साथ बातचीत करने आ पाई हूँ। इस खूबसूरत मौके के लिए मैं अपने बनाने वाले की बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई एम सो थैंकफुल टू गॉड that he has given me this opportunity that I can come and talk to you again, or people of God, that I can come and talk to you from the word of God. मैं विश्वास कर रही हूँ कि आप उसके वचन को सुनने को तैयार हैं। मैं विश्वास कर रही हूँ कि आपकी बाइबल्स आपके पास हैं। I know you are ready to eat from the word of the Lord. I know we are ready to eat from the word of the Lord. और खुदावंद का ये वचन हमें जिंदगी देता है। मालूम ये हमें जिंदगी देता है। Come let's eat from the manna. Come let's eat from this heavenly manna. अपने आप को तैयार करें। मैं ये प्रार्थना कर रही हूँ कि जब आप इस वचन को मुझसे सुन रहे हैं, मैं सिर्फ एक जरिया हूँ। When you're listening to God's word through me, I am praying that the word may bless you. आइए जल्दी से एक छोटी सी बात को आज के दिन में सीखेंगे। We're going to learn a small thing. You know, I'm claiming and I'm praying and I'm believing that this year is going to be the year of God's favor on God's people. मैं इस बात का विश्वास कर रही हूँ कि ये 2021 उन लोगों के लिए, हम लोगों के लिए जो खुदावंद पर, उस जिंदा परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। This is going to be the year of God's favor. This is going to be the year of God's favor. Let's quickly turn to our Bibles. अपने वचन को खोलें और मेरे साथ में निकालें गिनती की पुस्तक, द बुक ऑफ नंबर्स। पुराने नियम में है ये, द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 13, गिनती की पुस्तक और उसका 13वां अध्याय। जल्दी से बैकग्राउंड दे देती हूँ आपको। ये तब की बात है जब मूसा इजराइलियों को लेकर मिस्र में से निकल चुका है और वो बिल्कुल कनान के promised land where God was leading his people, the Israelites. Moses has brought them out and he's at the border of the promised land, the land of Canaan. कनान देश के बिल्कुल सीमा पर ये लोग आ चुके हैं और फिर परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस, as God instructed Moses ने एक काम किया, मूसा ने एक काम किया, जैसे परमेश्वर ने उसको बोला वैसे मूसा ने एक काम को किया। And verse 1 says, the Lord said to Moses, I'm going to read to you in English, और इसमें इस तरीके से लिखा है, The Lord said to Moses, send some men to explore the land of Canaan, which I am giving to the Israelites. परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर था। यहाँ पे कोई डाउटफुल बात नहीं है। बहुत क्लैरिटी के साथ में परमेश्वर ने मूसा को इंस्ट्रक्शन दिया था, send some men to explore the land of Canaan. उसने सिर्फ कहा कि जा कुछ लोगों को भेज ताकि वो कनान के देश का मुआयना करके या उसकी जांच पड़ताल करके आए, which I am giving to the Israelites. Very clear instructions. कुछ डाउटफुल नहीं था। ऐसा नहीं कहा था परमेश्वर ने कि जाओ और देखो और फिर मुझे बताना, and then I will think about it whether this land I can give to you or not. But he was very clear. He said, which I am giving to the Israelites. और फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा, From each ancestral tribe send one of its leaders. इज़राइल के 12 गोत्र थे। 12 गोत्रों में से परमेश्वर ने कहा एक एक लीडर को या एक एक सिखाने वाले को तू ले और उन सब को तू 12 लोगों को कनान के देश में, मुल्क कनान में भेज ताकि वो वहां का मुआयना करके आए। मैं ये कनान देश अपनी कौम को, इज़राइल को देने पर हूँ। और ये 12 के 12 मुल्क कनान में गए। They went to the land of Canaan. They went to explore it. और मालूम उसके बाद जब एक्सप्लोरेशन करके वापस आए तब इन्होंने रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट
मोसेस को दी, मूसा को दी। और ये बात मैं और आप 26वीं आयत से आगे आप अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं। एंड यू नो, आई वाज थिंकिंग दे वेंट टू द सेम प्लेस। ये किस्सा मैं और आप जानते हैं, हमने बहुत बार पढ़ा होगा। These 12 men, they were leaders of the 12 tribes of Israel. They went to the same land of Canaan. They explored together. वहां से वो लोग वापस आए और 26वीं आयत से लिखा है, they came back to Moses and Aaron and the whole Israelite community. There they reported to them and to the whole assembly and showed them the fruit of the land. उन्होंने अपनी बात आगे लाके मूसा के सामने और हारून के सामने रखी। और यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, we went into the land which you sent us and it does flow with milk and honey. हाँ, दूध और मधु की धाराएं तो कनान देश में बहती हैं। Here is its fruit, but the people who live there are पावरफुल। ये 12 लोग गए थे और इन्होंने लाके अपनी रिपोर्ट दी और इन्होंने कहा कि हाँ, वहाँ दूध और मधु की धाराएं तो बहती हैं, लेकिन लगा दिया, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो रहने वाले हैं, द नेटिव पीपल, दे आर पावरफुल, द सिटीज आर फोर्टिफाइड एंड दे आर लार्ज। और 30वीं और बाद में लिखा है, ये सब वो रिपोर्ट एक नेगेटिव रिपोर्ट बना के दिए जा रहे थे। वो लोगों को ऐसी रिपोर्ट दे रहे थे कि हाँ, हम जाके देख के तो आए हैं, सब कुछ उस देश के बारे में बहुत अच्छा तो है, लेकिन हम शायद उस देश को जीत नहीं पाएंगे, हम उस देश को अपने हाथों में कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ जो ऑलरेडी रहते हैं वो दानव के समान है, वो राक्षस हैं, वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनको हराना हमारे लिए मुश्किल है, नामुमकिन है। आगे पढ़ते जाइएगा, यहाँ पे 33वीं आयत तक पढ़ लीजिएगा, वहाँ लिखा है, हम तो उनके सामने टिड्डियों की मानंद लगते हैं। इजराइली जो परमेश्वर की कौम थी और ये इजराइल की ट्राइब्स के लीडर्स, इनका कहना ये था कि हम उनके सामने टिड्डियों के समान लगते हैं। और 30वीं आयत में लिखा है, then Caleb silenced the people before Moses and said, we should go up and take the possession of the land, for we can certainly do it. उन सब के बीच में कालिब उठा। 10 लोग एक बात कह रहे थे, 11 लोग एक बात कह रहे थे कि बहुत मुश्किल है, हम टिड्डियों की मानंद लगते हैं, हम नहीं जाके उस जगह को जीत पाएंगे। और वहीं पे ही एक कालिब उठता है और बिल्कुल उल्टी, बिल्कुल ऑपोजिट रिपोर्ट देता है। He said, हम कर सकते हैं, we can certainly go and take the land. चाहे वो लोग कैसे भी हो, चाहे वो दानव हो, चाहे हम टिड्डियों की मानंद हो, but we certainly can go and take the land. 2 ऑपोजिट ओपिनियंस, 2 बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियंस, एक ही बात के लिए, एक ही बात को लेके दी, दे वर डिफरेंट ओपिनियंस, एक ही चीज़ को लेके, एक ही सिनेरियो को लेके, एक ही स्टेज को लेके बात, 2 फर्क ओपिनियंस आती हैं, 2 फर्क बातें आती हैं। एंड यू नो, व्हेन आई रेड दिस, something struck me. एक बात ने मुझे स्ट्राइक किया कि मालूम, जब हम भी अपनी लाइफ में ऐसी क्रॉस रोड्स पे खड़े होते हैं ना, खुदाबाब के इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर थे। He had very specifically spoken, I am giving this land to my people, to Israelites. But you know, still there were contrasting opinions. खुदाबाब ने हमारे लिए ऑलरेडी एक प्लान बना के रखा है, हमारे लिए ऑलरेडी बातों को रखा है, एक प्लान है, उसकी योजना है, उसका पर्पस है हमारे जीवन से, तभी उसने हमें यहाँ पर भेजा है। वो कार्य उसने हमारे लिए ऑलरेडी रखा है। पर जब हम इस जिंदगी को जीते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी बात हो, चाहे बड़ी से बड़ी बात हो, मालूम, जब हम लाइफ की क्रॉस रोड्स पे आके खड़े हो जाते हैं ना, देयर आर ऑलवेज टू थॉट्स जो हमारे सामने आ जाते हैं। हमारे विचार हमेशा कॉन्ट्रास्टिंग हो जाते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड वी फेस कंफ्यूजन, हमें कंफ्यूजन होने लगता है, यू नो, हमारे थॉट्स। एंड यू नो, यहाँ पे लिखा है, अगर मैं और आप पढ़ें, 31वीं आयत से लिखा है, बट द मेन हु हैड गॉन अप विद हिम, जो कालिब के साथ लोग गए थे, उन्होंने कहा, वी कैन नॉट अटैक दोज पीपल, दे आर स्ट्रॉन्गर देन वी आर, एंड दे स्प्रेड अमंग द इजराइलिट्स अ बैड रिपोर्ट अबाउट द लैंड दैट दे हैड एक्सप्लोर्ड। उन्होंने एक नेगेटिव बात फैलानी शुरू कर दी लोगों में, इजराइलियों में, कि हाँ, कालिब तो कह रहा है कि हम जाके कनान को अपने वश में कर सकते हैं, लेकिन हमने उन लोगों को देखा है, वो हमसे बहुत ताकतवर हैं, हम नहीं जीत पाएंगे। यू नो, उन्होंने लोगों के बीच में एक बात को कहना शुरू कर दिया। बोल तो ये 12 लोग ही थे, 2 डिफरेंट ओपिनियंस लेके आए थे, लेकिन मालूम, पूरी की पूरी इजरायली कौम के दिमाग में कुछ आने लग गया। मालूम क्या आने लग गया? उनके विचार
टू कॉन्ट्रास्टिंग थॉट्स, थॉट प्रोसेसेस फर्क चलने लग गए, थॉट प्रोसेसेस फर्क चलने लगे। कालेब जो एक थॉट को लेके आया था कि हम सर्टनली, हम पूरे विश्वास में था वो कि हम उस मुल्क के कनान को अपने वश में कर सकते हैं, और बाकी के लोग कह रहे थे हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम जो वहाँ के लोग हैं हमसे ताकतवर हैं। टू डिफरेंट थॉट्स, और उन लोगों ने अपने थॉट्स को, अपने विचारों को इजराइलियों के बीच में छोड़ना शुरू कर दिया, इजराइलियों के बीच में देना शुरू कर दिया। और पूरी इजराइल की कौम एक, मालूम कब आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ? व्हाट आई वांट टू से टू यू, you can catch thoughts when people come and tell you something, when people bring a negative report, even if God is giving you a positive, an affirmation, एक पॉजिटिव आपको बात परमेश्वर बता रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी ये रख रखा है, but you hear their thoughts and then you also get a thought, नहीं खुदाबाप, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो सकता। हाँ, तू कह तो रहा है, but maybe this is not the place which you have kept for me, maybe this is not my job, maybe this is not the business that you've kept for me, ये बढ़ोतरी तूने शायद मेरे लिए नहीं रखी है, ये बड़ा घर शायद तूने मेरे लिए नहीं रखा है, ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि मैं इसको पा ही नहीं सकती, मैं इसके काबिल ही नहीं हूं, मैं इसको जाकर जीत ही नहीं सकती। कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियंस, कॉन्ट्रास्टिंग थॉट। सिर्फ एक बात उन लोगों ने की थी कि उन्होंने आकर एक विचार, अपना विचार छोड़ दिया, और वही विचार इजराइलियों ने ले लिया। सो मेनी टाइम्स एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंस टू अस। हमारे विचार भी जब हम सोचना शुरू करते हैं, हमारे विचार ऐसे डबल हो जाते हैं, हमारी ओपिनियंस डबल होने लगती हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। एक बात के बारे में हमें कभी भी एक विचार नहीं आता। वी हैव मल्टीपल थॉट्स, ऐसा और ऐसा अच्छा है, ऐसा बुरा है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम कभी भी कुछ क्लैरिटी से नहीं सोच पाते, हम कभी भी क्लैरिटी से कुछ नहीं हम डिसीजन ले पाते। इतनी हमें एक ही बात के बारे में कंफ्यूजन हो जाती है। इस वचन को पढ़ने के बाद एक चीज जो मुझे समझ में आई, देयर विल ऑलवेज बी अ थॉट व्हिच गॉड विल ब्रिंग टू डिलीवर यू, to expand you। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। There will always be a thought which God will bring to deliver you, to expand you, and there will always be a thought which the enemy will bring to stop you। हर बात के बारे में अपनी लाइफ में आप देख लीजिएगा। For every situation you will get two thoughts, for every situation you will have two opinions in your mind। हर बात के बारे में there will be a thought from God which will tell you expand, multiply, grow, because this is what I have kept for you, and there will be a thought from the enemy which will come to stop you, जो तुम्हें रोक देगा, हमें आगे बढ़ने से रोक देगा। और मालूम, जब मैंने इस बात को पढ़ा ना, एक बात और मैंने समझी। इट इज पॉसिबल टू बी स्टॉप्ड नॉट बाय योर फियर्स, इट इज पॉसिबल टू बी स्टॉप्ड नॉट बाय योर जायंट्स बट बाय योर थॉट्स। इजराइल की कौम को मुल्क के कनान में जाने से मालूम उन दानवों ने नहीं रोका। परमेश्वर ने तो बहुत क्लियरली उनसे बोला था ये जगह तो मैं तुम्हें देने पर हूं, लेकिन पूरी इजराइल की कौम में से सिर्फ यहोशू और कालेब ही कनान देश में पहुंचने पाए। पूरी की पूरी इजराइल की कौम उस डेजर्ट में ही, उस वीराने में ही खत्म हो गई, उस वादा किए हुए मुल्क तक पहुंच ही नहीं पाई। मुझे और आपको लगता है कि हाँ, वो दानवों से शायद नहीं लड़ पाए, लेकिन ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है में, क्योंकि वो तो दानव से कभी लड़ने गए ही नहीं। विदाउट इवन फेसिंग द फाइट, विदाउट इवन गोइंग इनटू द बैटल, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉमिस ऑफ गॉड, उन्होंने परमेश्वर के वचन को, उन्होंने परमेश्वर के वायदे को याद ही नहीं रखा। बिना लड़े ही उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ देयर थॉट्स, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर डिफीटेड थॉट्स, वचन को पढ़ लीजिएगा, कहीं नहीं लिखा कि उन्होंने उन दानवों से जाके लड़ाई करी, युद्ध किया और उस युद्ध में विजयी हुए या हारे। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो अपनी सोच की वजह से ही मुल्क के कनान में नहीं पहुंच पाए। इट इज पॉसिबल फॉर यू टू बी स्टॉप्ड नॉट बाय द जायंट्स, नॉट बाय योर फियर्स,
but by your thoughts. Your thoughts can limit you, people of God. आपके विचार, मालूम बहुत विचार कहीं से भी आता है, कहीं से भी आ जाता है और अपने दिमाग में, हमारे दिमाग में अपना घर कर लेता है. आप कभी बैठ के कभी सोचिएगा, कहीं से भी एक विचार आएगा आपके माइंड में और आप उसको सोचने लगेंगे, आप उसको सोचने लगेंगे और सोचते 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 आप यहाँ से शुरू करेंगे और वहाँ पहुँच जाएंगे. मालूम, My firstborn Aman, he is to give his 10th boards this year. और जिस दिन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि बोर्ड एग्जामिनेशंस होंगे, उस रात ये सिर्फ एक छोटा सा विचार आया था कि बच्चा जो 10-11 महीने से घर से निकला नहीं है, उसको हमने बचा कर घर में रखा है. He is safe right now and there is a pandemic going outside. अगर उसको घर से बाहर निकाला, अभी जब स्कूल्स भी खुल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, how are things going to work? और मालूम, उस एक थॉट की वजह से आई गॉट सो एंक्शियस कि मैं पूरी रात नहीं सो पाई. सिर्फ एक विचार आया था, जबकि खुदाबाप ने अपने वचन में कहा है दैट ही इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ अस, ही इज गोइंग टू प्रोटेक्ट अस, ही इज आवर प्रोटेक्टर, ही इज आवर गॉड हु टेक्स केयर ऑफ अस. मालूम, इन सब बातों को याद करते हुए भी, इन सब बातों पर विश्वास करते हुए भी आई गॉट सो एंक्शियस कि मैं पूरी रात सो नहीं पाई. Just a thought can disturb you so much. Just a thought can disturb you so much, people of God, that you will stop doing what God has kept you to do. आपके विचार ऐसे आप अपने विचारों से जो आपको नीचे दबाते हैं ऐसे दब जाएंगे कि परमेश्वर ने जो आपको आपके लिए रखा है करने के लिए, वो भी आप नहीं कर पाएंगे. Let me tell you one thing. The enemy, the devil, he cannot take away what God has promised you. आपका विरोधी आपसे वो नहीं छीन सकता जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है. What he has promised in this word, the enemy cannot take it away from you. He cannot take away God's promises from our lives, but he can definitely take away our thoughts. He can definitely take away our thoughts. वो आता है और चुपके से हमारे दिमाग में एक विचार को डाल के चला जाता है. वो आता है और हमारी सोच को अटैक करके चला जाता है और हम उन बातों को सोचने की बजाय जो हमारे लिए अच्छी हैं, जो हमारी एक्सपेंशन के लिए हैं, जो हमारी ग्रोथ के लिए हैं, उनको साइड पे रख कर हम उन बातों को सोचने लग जाते हैं जो शैतान हमें रोकता है. उन बातों को सोचने लग जाते हैं जिनके थ्रू शैतान हमें हमारे प्रॉमिसेस तक पहुंचने से रोक लेता है. If he can make you think otherwise, if the devil is successful in making you think in opposite of God or in opposite of what God has promised for you, he can stop you from reaching your promises. अगर शैतान आपके विचारों को पलट दे, अगर आपका विरोधी आपके सोचने के नजरिए को पलट दे, तो आपको वो उन चीजों से रोक सकता है जो खुदावंद ने आपसे वादा कर रखी हैं, जो खुदावंद ने आपसे वादा कर रखी हैं, वो और कुछ नहीं ले जा सकता. मालूम, Okay, let me tell you something. मैंने बहुत लोगों को सुना है, God bless you if you are one of them. I have heard many people say, God came and told me, God spoke to me. God bless you, my dear sister, my dear brother, if God comes and speaks to you. But मैं सोचने लगी कि खुदाबाप मुझे ऐसे कभी सुनाई तो नहीं देते. ऑडिटरी लेवल पे तो I have never heard God speak to me. कि जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ और आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, वैसे ही खुदाबाप मुझसे और आपसे मुंह दर मुंह होकर बात नहीं करते अब, कि उनकी आवाज़ हम क्लियरली सुन पाएं. कितना आसान हो जाता ना कि खुदाबाप आके हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस देता और हम उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहते. But it doesn't happen like that. God bless you, my dear sister, my dear brother, if you definitely, you can say that I heard from God. But अब हम ऑडिटरी लेवल पे खुदाबाप को नहीं सुन पाते. And the same thing, have you ever seen the devil come to you? एक पूरे ब्लैक केप में और 2 हॉर्न्स लगा के और हाथ में भाला लेके या त्रिशूल लेके. हैव यू एवर सीन द डेविल कम एंड स्पीक टू यू? ऐसा मत कर, खुदा के तरफ दूर हो जा, उसके पास मत जा. हैज ही एवर डन दैट? हैव यू एवर हर्ड द डेविल स्पीक टू यू? नो. हम फिजिकली मैंने तो आज तक ना तो खुदाबाप को बहुत ऐसे सुना कि उसने मेरे सामने आके मुझसे कुछ कहा या मेरे कानों में मैंने उसकी आवाज़ को सुना, ना ही अपने विरोधी की आवाज़ को सुना. मालूम, मैंने 2 आवाज़ें कहाँ सुनी है हमेशा? I have always heard 2 voices in my mind. I have always heard the voices of my thoughts. And this is where you have to decide, people of God, who
are you going to listen? God is going to put a thought in your mind. God is going to put a thought in your mind which will take you to what he has promised for you, what he has kept for you. And the devil also will come and put a thought in your mind, and he will make you so afraid कि वो आपको जो खुदा बाप ने आपसे वादा किया है वो उससे आपको दूर ले जाएगा. And if you can be successful in taking you away from what God has promised for you, his work is done. His work is done. उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं है. वो और तो कुछ चुरा नहीं पाता. वचन में लिखा तो है that वो तो चुराने के लिए आया है. Yes, he is a thief. He comes to steal. He comes to destroy. You know what he comes to steal and what he comes to destroy? He comes to steal our thoughts, because he cannot steal our promises. He cannot steal what God has planned for me. He cannot steal what God has kept for me. So he comes and steals my thoughts. He comes and steals my opinions. He comes and steals the way I process things. वो आता है और मेरे मस्तिष्क को, मेरे विचारों को अटैक करता है. And when I start thinking in the opposite direction of what God wants me to think, I go away from his promises. I go away from what God has kept for me. And this is what I want to encourage you today morning, people of God. There will be many occasions in your life. There will be many occasions in your life when you will be standing at the crossroad. बिल्कुल बॉर्डर पर आप खड़े होंगे, बिल्कुल सीमा पर खड़े होंगे कि आपको पता है कि मेरा वादा किया हुआ मुल्क मेरे सामने है. When you will know the promised land is right in front of me. God has kept it for me. खुदा बाप ने मेरे लिए ये मुल्क कनान रखा है. God has kept this plan for me. God has kept this ministry for me. God has kept this business for me. God has kept this big job for me. ये प्रमोशन मेरी है. आपको मालूम होगा. But that moment you will have to take control of your thoughts. अपने विचारों को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा. जो चीज आपको आकर रोकती है उसे शन करना होगा, उसे अपने मस्तिष्क में से आके निकालना होगा. Because God says, I am giving to my people. This is the land that I am giving to my people. This is the promise that he has given you, people of God. आप उन सारी अपनी प्रोफेसीज को याद कर लीजिएगा आज के दिन में. उन सारी बातों को जो आपसे आके लोगों ने कहा है कि ये परमेश्वर ने जो मुझे परमेश्वर बताता है ये तुम्हारे लिए परमेश्वर ने रखा है. रिमेंबर ऑल द प्रोफेसीज दैट हैव बीन डन फॉर यू. रिमेंबर ऑल द प्लान्स दैट गॉड हैज शोन टू यू. उन बातों को याद कर लीजिए. गॉड हैज केप्ट ऑल दैट फॉर यू. गॉड हैज इंडीड केप्ट ऑल दैट फॉर यू. बट इफ यू हैव नॉट बीन एबल टू रीच ऑल दोस थिंग्स, अगर आज तक आप उन बातों तक नहीं पहुंच पाए हैं, think about it. Start thinking about it. What has stopped you? What has kept you away from those promises? सोचना शुरू कर दीजिए. कहीं हमने मैंने और आपने कालेब की बजाय उन 10 लोगों की बात तो सुननी नहीं शुरू कर दी, या उन 10 विचारों को सुनना, लोगों को नहीं, उन विचारों को सुनना तो नहीं शुरू कर दिया जो मेरे मस्तिष्क में उठे थे और उन सब के विरोध में उठे थे जो परमेश्वर ने विचार मेरे मन में डाले थे, मेरे मस्तिष्क में डाले थे. उन विचारों के अगेंस्ट, उन विचारों के विरोध में जो विचार उठे थे, क्या उन विचारों की वजह से तो नहीं आज मैं उन वादा की हुई बातों तक नहीं पहुंच पाया हूं? Start thinking, people of God. Start thinking the thought that you hold fast. जिस विचार को आप थामे रहेंगे ना, that is exactly the thought that will dominate your life. That is exactly the thought which will decide about your life. You know why I'm talking about it? कभी सोचेगा, योर थॉट्स, जो विचार आपके दिमाग में, आपके मन में, आपके मस्तिष्क में आते हैं, द थॉट्स, योर थॉट्स गिव राइज टू योर इमोशंस. जब आप एक ही विचार के बारे में सोचते जाते हैं, वो या तो आपको बहुत उत्साहित कर देता है या आपको बहुत बहुत दीनहीन बना देता है, आपको बहुत नीचे ले आता है, आपको बहुत उदासी में ले आता है. योर थॉट्स गिव राइज टू योर इमोशंस एंड योर इमोशंस लीड टू योर डिसीजन. आप कभी सोचेगा, योर थॉट्स गिव राइज टू योर इमोशंस एंड योर इमोशंस लीड टू योर डिसीजंस. आपको अपनी लाइफ में क्या करना है या आपके विचार डिसाइड करते हैं. स्टार्ट गोइंग बैक, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट. योर थॉट्स एक्चुअली डिसाइड what you will be doing in your life. Take care of your thoughts, people of God. ये बात मैंने सीखी है इस साल के लिए. Take care of your thoughts, people of God. God has kept something for you in this year. God has kept something for you. God is telling me He has kept something for you, my dear sister, my dear brother. It is on you to go and grab it. It is on you to go and take control of it. He is about to give it to you. He is ready to give it to you.
Do not stop yourself. Do not stop yourself. You have the potential. खुदा बाप ने आप में वो सामर्थ्य रखी है, खुदा बाप ने आप में वो सामर्थ्य रखी है कि जो देश उसने आपसे वादा कर आपको देने पर वो है, वो दे सकता है। आप में वो सामर्थ्य है कि आप उसे लेने जा सकते हैं। Do not stop yourself. Let not your thoughts stop you. Let not your thoughts stop you. He is ready to bless you. He is ready to make you multiply. He is ready to make you grow. All that you have to do is go and claim your promise. Claim your promise. मालूम, मैं एक स्त्री के बारे में आपको बताती हूँ। वचन में लिखा है, उस स्त्री को 12 साल से लहू बहता था। उसने अपनी सारी धन, अपना सारा धन, अपनी सारी संपत्ति, वो सब कुछ व्यय कर चुकी थी। सब कुछ उसका खत्म हो चुका था वैद्यों के पास जा जाके, लेकिन फिर भी चंगी ना हुई थी। It says, Mark chapter 5 verses 27-28, when she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak because she thought. Clearly it says, verse 28, because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. वो सब कुछ उसको, वो सामर्थ्य कहीं ना कहीं से उसके पास में आ गई कि वो सब को, पूरी भीड़ को चीरती हुई यीशु मसीह के पास आ गई, क्योंकि उसने सोचा, because she thought that if I touch Jesus, I will be healed. I will be healed. People of God, you will get the strength to do things. आपको परमेश्वर सामर्थ्य देगा कि आप जाकर वो काम करने पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। She cut through the crowd. She cut through all those people and she reached her Jesus because she knew, if I go and touch him, I will be healed. I will be healed. God bless you, people of God. I leave you with this thought. ये विचार आपके पास छोड़कर जा रही हूँ। ये हमेशा याद रखिएगा, there will be 2 different thoughts which will come in your mind. दो अलग, एक ही बात को लेके हमेशा आपके पास में 2 अलग अलग विचार आएंगे। It is up to you to decide which thought is from God and which thought is from your enemy. जो विचार आपको रोकता है, that is definitely not from God. जो विचार आपको उसके वादा की हुई चीज को पाने से रोकता है, that is not from God. And the thought which helps you to go and take what God has promised you is from God. Act upon it. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make his face shine upon you and may he be gracious to you. I love you, people of God. God loves you so much. खुदा बाप आपसे बहुत प्यार करता है। हम यहाँ पर आपसे बहुत प्यार करते हैं। We are always praying for you. खुदा बाप आपको बरकत दे और हमेशा संभाल कर रखे। Stay happy, stay safe, stay blessed. May the Lord bless you. हालेलुया, व्हाट अ ब्लेस्ड वर्ड ऑफ गॉड। कितना खूबसूरत वचन मेरे और आपके पास में पहुंचा है। यकीनन अगर हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को पूरी रीति से सौंप दें, अगर अपने थॉट्स को, अपनी डिजायर्स को, अपनी वांट्स को परमेश्वर यहोवा के सामने लाके रख दें और उसके वचन के ऊपर भरोसा रखें, उसके ऊपर विश्वास रखें, तो हर एक वो बात जो आप चाहते हैं, हर एक वो बात जो मैं चाहता हूं, एवरी डिजायर दैट यू हैव, एवरी वांट ऑफ योर्स, इट विल बी फुलफिल्ड। व्हाई? बिकॉज यू आर डिपेंडिंग अपॉन गॉड, यू आर डिपेंडिंग अपॉन हिज वर्ड। आप किसी इंसान पे भरोसा नहीं रख रहे, आप अपने परमेश्वर यहोवा पे भरोसा रख रहे हैं और वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सारी बातें आपके लिए भलाई, जी हां, भलाई ही को उत्पन्न करेंगी, क्योंकि परमेश्वर यहोवा की ये वचन है, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। और ये वाणी अगर आपने सुन ली है, इस वचन को अगर आपने अपने दिल में उतार लिया है और अगर आप उसको अपने जहन में रखेंगे, तो हां और आमीन के साथ में परमेश्वर का यह वचन मेरे और आपके जीवन में पूरा होगा। मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं और मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का यह वचन जो आज के दिन में आपने एकता के द्वारा सुना है, ये आपके अंदर घर कर जाएगा और आपके अंदर अमली जामा पहनेगा और 100 गुना फलवंत होने पाएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। लेट अस प्रे। प्यारे परमेश्वर, हम तेरे नाम को ऊंचे उठाते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तूने हमें इस नए साल में दाखिल किया और आज इस खूबसूरत वचन के साथ में तूने हम सबको बरकत दी है। और हम यही चाहते हैं कि तेरा ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाने पाए। हम इस वचन के अंदर बने बढ़ें और इस वचन को पूरा कर सके। मेरे परमेश्वर, तेरे ऊपर भरोसा रखें, तेरे ऊपर विश्वास करें, तुझ पर तवक्कुल करें। लेट अस डिपेंड अपॉन यू ओ लॉर्ड। लेट नॉट आवर thoughts conquer us, let not our desires conquer us, but Lord, if anything may conquer, it may be your word, it may be your will, Lord. हम अपने आप को तेरे सामने नतमस्तक करते हैं और हम तुझसे यही विनती करते हैं, हम सबको बड़ी बरकत दे। ये वचन हम सबके लिए आशीष और बरकत का कारण ठहरने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
I pray that you will have a beautiful week ahead, a blessed week ahead. Yes, we are going to meet you once again next Sunday. And let me assure you that the Lord is going to bless you. The Lord is going to keep you. He is going to keep you in His arms. You are never alone. Why? Because the Lord loves you and He is found with you. He is found in every step of your life. Be blessed. Have a beautiful and the blessed week ahead. May the Lord bless you.